Assalamu alaikum. I'm Amir Arshad and I'm from Meritorious Education Center. From last 30 plus years, Meritorious Education Center is serving for the best education in Karachi. And here we are, inshallah, after 11th, we have a second session of NAD test. And to have a good preparation or the कहिए कि लास्ट पंच देने के लिए अपनी प्रिपरेशन को here I have 100 important MCQs for NAD test और this is for chemistry और पर्पस हमारा ये है कि हम आप अगर इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखते हैं so they've been extracted from the past papers of the NAD and hopefully that will really helps you in the paper. So starting from question 1, we inshallah explain the questions as well. Wherever it is necessary, we'll give the explanation and we'll give you the right answer. So ligands are, the first question is from the second year transition elements, that's the ligands are. So if you recall that in transition metal complexes, we say that complexes are formed between metals and ligands. So metals are the atoms which have empty orbitals, while the ligands are species which provides lone pair of electron, and the species which provide lone pair of electron are also called Lewis base. So Lewis base is the another name of ligand, because Lewis base also defined as a species which donates electron pair, while the Lewis acid accept the lone pair. Another name for Lewis base, that is one which donate electron pair, should be the nucleophile, so it should be the electrophile. So Lewis base, if donate electrons, so it will attack on the positive charge of atom, so it is also called nucleophile. So it means there are three names for ligands: nucleophile, Lewis base and ligands. Here we have answer C for the first question. Metal used for galvanizing iron. Galvanizing is the process by which we try to prevent iron from corrosion. So there are different things, different techniques used to prevent iron from corrosion. One of them is to cover the iron with metal which is more reactive than iron. So it means when the process of corrosion starts, that metal will corrode itself and prevent iron from rusting or corrosion. So zinc is in electrochemical series is more reactive than iron. So the coating of zinc over iron sheet is called galvanization. So जो question हुआ कि metal used for galvanizing iron, the answer should be zinc, which is option A. Which is the most powerful oxidizing agent? The oxidizing agent are those which oxidizes others and reduces themselves. So here in this case we have all halogens. तो हमें देखना होगा कौन सा halogen अपने आप को रिड्यूस करने में सबसे आगे है, दैट इज़ रिड्यूस मीन्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. सो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने में सबसे ज़्यादा होगा. तो इसका मतलब वो होगा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीने और ख़ुद इलेक्ट्रॉन गेन करे, और वो है फ्लोरीन. सो अगेन वी हैव आंसर ऑप्शन ए. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल consist of triple bond between two nitrogen atoms, और इसकी स्टेबिलिटी की वजह ही यही है कि in order to react the triple bond should be broken, जिसकी बॉन्ड एनर्जी अबाउट 800 के करीब है, 786 समथिंग लाइक दैट है. दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी स्टेबल, और एयर में होता है और ऑलमोस्ट इनर्ट गैस के तौर पर होता है. अनटिल एंड अनलेस वी गिव अ वेरी हाई एनर्जी, ये नाइट्रोजन रिएक्शन करने वाला नहीं है. इन एयर स्पेशली व्हेन लाइटनिंग अकर्स, तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO बनाता है, अदरवाइज इस नाइट्रोजन से रिएक्शन होने की कोई उम्मीद नहीं. सो इट्स स्टेबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, विच इज़ आवर ऑप्शन ए. पाई बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड, बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. हम ये कहते हैं दो एटम्स के दरमियान सिर्फ एक बॉन्ड ऐसा बन सकता है जो डायरेक्ट हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. तो ये जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं जिनको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, ये हमेशा बनते हैं साइड वेज या लेटरल ओवरलैपिंग से, और इसमें सिर्फ p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, s पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता. तो इस हिसाब से हमारा जो जवाब होना चाहिए वो साइड वे ओवरलैपिंग होना चाहिए और p orbitals only, which is option A. In primary alkyl halides, halogen atoms attach to carbon which is already attached to. Primary alkyl halides या primary carbon की definition ही यही है
कि ऐसा कार्बन जिसके साथ 2 हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप या कार्बन एटम लगा हो। तो जिसके साथ 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन लगा हो वो प्राइमरी, जिसके साथ 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन लगे हो वो सेकेंडरी, और जिसके साथ तीनों कार्बन लगे हो कोई हाइड्रोजन न लगा हो वो टर्शी है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, वेयर 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड, that primary carbon is called primary and the alkyl halide is called primary alkyl halide। तो अगर ऐसे कार्बन से हैलोजन लगेगा जो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, so the alkyl halide should be called primary alkyl halide। At what temperature does water have highest kinetic energy? वाटर क्या, किसी भी चीज़ के लिए आप ये कहेंगे तो जस्ट पर्टिकुलर जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा उस पर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सो इट्स दिस, लुक एट दी ऑप्शंस ना। तो इसमें 2 ऑप्शन तो एक ही हैं, एक में लिखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे में लिखा 373 केल्विन। तो समझदारी की बात यह है कि यूनिट चेंज किया है बट वैल्यू सेम है। अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड करेंगे, तो यू विल हैव 373। इट मीन्स ए और बी एक ही टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बहरहाल एक टेम्परेचर है मगर उससे बहुत कम है। सो अब हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट टेम्परेचर पर होगी, तो इन दिस केस ए और बी दोनों ही हाईएस्ट हैं। दैट्स वाई माई राइट आंसर इज डी, वेयर आई रिटन बोथ ए एंड बी। सो डी इज द राइट आंसर। Here we have how many sigma bonds are present in benzene। बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम प्रॉपर तरीके से बनाएं, यानी जिसमें हम सारे बॉन्ड शो करें, तो वो ऐसे आपके सामने आ रहा है, जिसमें 6 कार्बन एक साइक्लिक रिंग बनाते हैं और हर कार्बन एक तरफ से सिंगल और एक तरफ से डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, और फिर हर कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इस हिसाब से ईच कार्बन इज़ इंगेज्ड विद 2 सिग्मा बॉन्ड्स फ्रॉम 2 साइड्स। तो अगर मैं रिंग में गिनूँ तो मुझे 6 सिग्मा बॉन्ड नज़र आएंगे जो हर कार्बन बना रहा है, और 6 हाइड्रोजन के साथ नज़र आएंगे। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड बनेंगे 12, जबकि 3 बनेंगे पाई बॉन्ड। तो बेंजीन में टोटल 15 बॉन्ड होते हैं, 3 पाई और 12 सिग्मा। दैट इज़ ऑप्शन ए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं और हमें बना कर देते हैं ईदर एल्डिहाइड और कीटोन्स। अब ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अगर हम इसको देखें तो OH जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और 2 तरफ अल्काइल ग्रुप है। इस कार्बन का एक और नाम है और वो है 2 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल। सो जो 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं, आफ्टर ऑक्सीडेशन दे ऑलवेज गिव्स कीटोन, और जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो ऑन ऑक्सीडेशन ऑलवेज गिव्स एल्डिहाइड, जबकि टर्शी अल्कोहल जो है वो सिरे से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। तो अब चूँकि ये 3 कार्बन वाला प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल है, तो जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो 2 डिग्री होने की वजह से ये कीटोन बनेगा। और कौन सा कीटोन? जिसमें 3 कार्बन होते हैं। तो 3 कार्बन वाला कीटोन प्रोपेनॉन कहलाता है और उसका कॉमन नेम है एसीटोन। तो इस हिसाब से यहाँ जो ऑप्शन है वो बनता है एसीटोन ए। Hybridization of carbonyl carbon. Carbonyl carbon is the carbon which is forming double bond with oxygen and then 2 single bond with any other thing. तो याद रहे हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता। कार्बन को बनाने हैं 4 बॉन्ड और एक उसमें पाई बॉन्ड है, तो वो पाई बॉन्ड अगर मैं हटा दूं तो बाकी बचते हैं 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड का मतलब है कार्बन की 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp2 एंड दैट इज ऑप्शन बी। What is anti-freezing agent? Which is anti-freezing agent? तो anti-freezing agent are those chemicals जिन्हें जब हम पानी में डालते हैं तो वो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट को गिरा देते हैं। तो अमूमन गाड़ियों के रेडिएटर में हम ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट डालते हैं, स्पेशली व्हेन इट्स विंटर, और बहुत सारी दुनिया के इलाकों में टेम्परेचर 0 से नीचे गिरता है और हमें पता है 4 डिग्री से पानी अगर नीचे जाता है तो वो एक्सपेंड होने की कोशिश करता है। तो गाड़ियों के रेडिएटर में अगर पानी सिंपल पड़ा है और टेम्परेचर 4 डिग्री से ड्रॉप होगा तो ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ वाटर वो पाइप्स जो हैं छोटे छोटे जितने इतने सारे होते हैं रेडिएटर में वो फट सकते हैं। तो इससे रुकने का एक तरीका ये है कि हम उन इलाकों में या उस वेदर में जब हमें चांस है कि टेम्परेचर 4 डिग्री से कम होगा, कोई एंटी फ्रीजिंग एजेंट रेडिएटर में डालते हैं। ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट ग्लाइकॉल्स होते हैं। तो यहाँ 2 के नाम लिखे हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये दोनों के दोनों एंटी फ्रीजिंग एजेंट हैं। तो इसलिए राइट आंसर इज डी, विच इज़ बोथ ए एंड बी।
इफ़ यू एड कैटलिस्ट इन अ रिएक्शन तो क्या होगा? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which either increase or decrease the rate of reaction without consuming itself in the reaction. So ये टेम्परेचर ये रिएक्शन को तेज़ भी करता है, रिएक्शन को स्लो भी करता है. बेसिकली इट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. और दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन अमूमन हम कहते हैं कि जब हम लफ्ज़ कैटलिस्ट कहते हैं तो इससे मतलब लेते हैं स्पीड अप, यानी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने वाला. जो रिएक्शन की स्पीड कम करने वाला तो उसे नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर कहते हैं. अब यहाँ जो ऑप्शंस हैं, जाहिर सी बात उसमें तो नेगेटिव वाला है ही नहीं. तो एक ऑप्शन है स्पीड्स अप, एक ऑप्शन है स्टॉप्स द रिएक्शन, एक ऑप्शन स्टार्ट्स द रिएक्शन और एक है नल. तो इसमें इस हिसाब से द बेस्ट ऑप्शन इज ए, दैट द कैटलिस्ट विल स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन. Which of the following is used in Dow's process? Dow's process is one of the method by which phenol is prepared. और phenol Dow's process में बनता है स्टार्टिंग क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाते हैं. इन फर्स्ट स्टेप इट फॉर्म सोडियम फिनोऑक्साइड विच इज लेटर रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म फिनोल. द रिएक्शन टुक प्लेस एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. लेकिन चूंकि अभी यहाँ सिर्फ ये पूछा है कि हम किस केमिकल को यूज़ करते हैं डाउ प्रोसेस में, तो वो है क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन ए. Evaporation of water is a process, is a dash process. Evaporation is a cooling process. Why it's a cooling process? Evaporation में हम definition में कहते हैं कि evaporation is a process by which the high energy liquid molecules escape the surface of the liquid at any temperature except its boiling point. तो important बात ये है कि जो liquid में molecules होते हैं उनकी average kinetic energy temperature decide करती है. Evaporation के दौरान आप liquid से उन molecules को escape करवा देते हैं जिनकी energy high है. तो अगर सारे में से हाई एनर्जी वाले गायब हो जाएंगे तो पीछे क्या बचेंगे? मीडियम या लो एनर्जी वाले. तो उनकी एवरेज खुद ब खुद ड्रॉप हो जाएगी. तो इसका मतलब है टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा. तो जिस प्रोसेस से टेम्परेचर ड्रॉप हो उसके लिए कहेंगे कूलिंग प्रोसेस. सो दिस इज ऑप्शन बी. IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड का हमें याद होना चाहिए, इट्स एक्सप्लोसिव, इट्स अ डेंजरस कंपाउंड. जब बनता है ना तो हम इसको ओपन एयर में नहीं रख सकते, एक्सप्लोड हो जाता है. तो हम इसको सॉल्वेंट में डिबो के रखते हैं ताकि इसकी एक्सप्लोजन से बच सकें और सेफ तरीके से इसको हम स्टोर कर सकें. तो ये असल में फ़िनोल का डेरिवेटिव है, जिसमें फ़िनोल की दोनों ऑर्थो पोजीशंस और पैरा पोजीशन के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ होता है. This is the structure of picric acid. So if I give the name, IUPAC name to this structure, it should be 2,4,6 trinitrophenol. और जो given option है उसके मुताबिक 2,6 trinitrophenol is option B. Alkyl magnesium halide is a organometallic compound where we have a bond between carbon and metal, and that metal is magnesium, and this is called Grignard's reagent, after the name of Victor Grignard, the scientist who first prepared this particular reagent. So alkyl magnesium halide is an example of organometallic compound, and its chemical name is common name is Grignard's reagent. So this is option A जो हमने यहाँ लिखा है. अब आप कह सकते हैं कि in these options we have organometallic compound is also. तो organometallic compound, alkyl magnesium halide is an example of organometallic compound. Alkyl magnesium halide is an organometallic इसकी एग्जाम्पल नहीं है, या हम इसको organometallic कंपाउंड कह नहीं सकते. तो जो सबसे प्रॉपर नाम या बेस्ट आंसर हुआ वो Grignard's reagent, वो जो उसका असल नाम है, क्योंकि देयर आर मेनी अदर organometallic कंपाउंड और जो alkyl magnesium halide तो बहरहाल नहीं होते. सो वी हैव 17th, which substance gives positive Tollens test? This is a very important test. Tollens reagent is अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. इसको हम कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट. ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या IUPAC डायामाइन सिल्वर 1 नाइट्रेट. सो ये टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करके अपने आप को रिड्यूस करता है. तो किसको ऑक्सीडाइज करता है? एल्डिहाइड्स को. तो चूँकि ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करके अपने आप को रिड्यूस करता है फ्रॉम सिल्वर +1 कैटाइन टू प्योर सिल्वर मेटल. नतीजा ये होता है कि जब एल्डिहाइड इससे ऑक्सीडाइज होते हैं तो जिस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन कर रहे होते हैं उस टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के साथ प्योर सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, और जब ग्लास की एक साइड सिल्वर से कोट हो जाए तो वो ग्लास मिरर बन जाता है. यू कैन सी योर इमेज ओवर हियर. तो इसलिए इस टेस्ट को कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि अगर एल्डिहाइड मौजूद हो और हम उसका रिएक्शन टॉलेंस एजेंट से कराएं तो हमारे टेस्ट ट्यूब का वो पोर्शन जिसमें सोल्यूशन होगा वो मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ बहरहाल पूछा गया है कि ये कौन से सब्सटेंस के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है
तो ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ देता है इन ऑल गिवन ऑप्शंस। तो डी इज़ द राइट आंसर। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बिकॉज अल्काइल हैलाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से दो अलग अलग रिएक्शन करता है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। इफ वी हैव एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट विल बी एसएन रिएक्शन, एंड इफ वी हैव अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट विल बी एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ हमने एक लिखा है, दूसरा भी पूछा जा सकता है। सो इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्काइल हैलाइड शू के सब्स्टिट्यूशन करेगा तो हैलोजन की जगह OH लगेगा और हमें मिलेगा अल्कोहल, विच इज़ ऑप्शन सी। लेकिन अगर ये होता अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और उससे अल्कीन मिलता है। तो हेयर इन दिस केस द ऑप्शन इज सी। एलिमेंट्स इन सिमिलर ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप, एक ही वर्टिकल कॉलम्स में होते हैं, उन सब के लास्ट ऑर्बिट की कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। सो दे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट ऑर्बिट, जिसको आप कहते हैं सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो जो गिवन ऑप्शन है उसके मुताबिक बी इज़ द राइट आंसर। सो इन द सिमिलर ग्रुप ऑल एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Then we have an expression delta H is equals to delta H1 plus delta H2 plus so on. ये किस फॉर्मूले, किस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है? सो दिस इज़ बेसिकली द Hess's law of constant heat of summation, which states that the enthalpy change of a particular reaction is the sum of enthalpy changes of all the intermediate और indirect steps of the reaction। मीन्स अगर कोई रिएक्शन डायरेक्टली करवाया जाए और उसकी इंथैल्पी चेंज नोट की जाए और फिर उसी रिएक्शन को बहुत सारे स्टेप्स में इनडायरेक्टली कराया जाए तो दोनों का इंथैल्पी चेंज का इफेक्ट बराबर होगा। तो जितने इनडायरेक्ट स्टेप हैं उन सब की इंथैल्पी चेंज जमा करें तो वो डायरेक्ट स्टेप की इंथैल्पी चेंज के बराबर आएगी। दिस इज़ व्हाट Hess's सजेस्ट, Hess's लॉ है जो है ऑप्शन डी। देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हमारी बुक में 6 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, जिसमें है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें है टेम्परेचर, जिसमें है कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें है कैटलिस्ट, जिसमें है रेडिएशन और जिसमें है सरफेस एरिया। जस्ट टू कन्फ्यूज दी स्टूडेंट, एक ग्लास में अच्छे खासे बच्चे पेपर में बैठ के कन्फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ सरफेस एरिया की जगह सरफेस टेंशन लिख दिया है, जिसका इधर सी बात है कोई सेंस, कोई ताल्लुक इससे नहीं बनता। सो कंसनट्रेशन, कैटलिस्ट, टेम्परेचर दे डू इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, बट सरफेस टेंशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। सो बी इज़ द राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड, बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनको हम उनके केमिकल नेम के साथ साथ उनके कॉमन नेमों से भी जानते हैं, और बहुत अच्छी बात है इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है तो रट्टा ही है। तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम का तमाम कंपाउंड्स के नामों में सोडा लगता है, एंड उसके साथ हम उस कंपाउंड से रिलेटिव किसी एडजेक्टिव का तस्करा कर देते हैं। मसलन जो हमारे घरों में नमक इस्तेमाल होता है खाने पीने के लिए, दैट इज़ NaCl, उसका नाम इसी निस्बत से है कॉमन सोडा। धोने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं सोडियम कार्बोनेट, उसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। खाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं बेक करने के लिए, बिस्किट और केक वगैरह बनाने के लिए, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। तो इस हिसाब से ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इट इज़ कॉल्ड कास्टिक सोडा। तो अब ये कास्टिक सोडा ऑप्शन डी में, और वजह ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ करोसिव, जब आप इसे हाथ लगाते हैं तो इट्स कास्टिक टू टच, हमारे हाथ में जलन, बर्न्स पैदा करता है, पेनफुल, इसलिए हम इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। तो ये है ऑप्शन डी। विच ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन फैट्स और ऑयल? अगर हम डेफिनेशन याद करें फैट्स और ऑयल की तो हम कहते हैं दे आर ट्राई एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन। तो दे आर ट्राई एस्टर, तो फिर इस हिसाब से इनका फंक्शनल ग्रुप हुआ एस्टर, विच इज़ ऑप्शन बी। एसिटिक एसिड इट कन्वर्ट इनटू मीथेन। एसिटिक एसिड के बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस आपके सिलेबस में हैं, उसमें से एक रिएक्शन था डी कार्बोऑक्सीलेशन। डी कार्बोऑक्सीलेशन वो पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बेसिकली COOH ग्रुप रिमूव करके उसे सिंपल अल्कीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ उसी का तस्करा है कि एसिडिक एसिड को अगर मीथेन अल्केन में कन्वर्ट करना हो तो द प्रोसेस इज डी कार्बोऑक्सीलेशन। दिस इज ऑप्शन ए।
ग्रुप 7 एलिमेंट्स आर कॉल्ड, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स में से कुछ के कुछ प्रॉपर नाम है। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ग्रुप 8 को नोबल गैसेस कहते हैं, ग्रुप 7 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इसको हम कहते हैं हैलोजन। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इसका सही नाम हुआ। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ कंडीशंस हैं जो पूरी हो तभी रिएक्शन होता है। मसलन द फर्स्ट कंडीशन इज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड फिजिकली, दोनों रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्शन करना चाहते हैं उनके कोलिजन्स हो, जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे रिएक्शन को उतना प्रॉपर चांस बनेगा। अब जब वो कोलाइड करते हैं तो दे ट्राई टू ब्रेक देयर ओल्ड बॉन्ड्स, तभी वो नए बॉन्ड बना पाएंगे। तो ओल्ड बॉन्ड तोड़ने के लिए सर्टेन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। ये एनर्जी अगर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास होगी तो ही वो मॉलिक्यूल को तोड़ पाएंगे और रिएक्शन करवा पाएंगे। वो रिएक्शन जो वो कोलिजन जिससे हमें रिएक्शन मिल जाए, यानी रिएक्टेंट के बॉन्ड्स टूटें और नया बॉन्ड बन जाए, उसको हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। वो तभी होगी जब हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास वो प्रॉपर एनर्जी मौजूद होगी जो रिएक्शन के लिए चाहिए। जबकि अगर वो उतनी एनर्जी नहीं रखते तो फिर जब टकराते हैं तो वो टकराना इनइफेक्टिव कहलाता है। सो फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन द मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड द मिनिमम एनर्जी विच इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। याद रहे हम यूँ लिखते हैं द मिनिमम एनर्जी फॉर द केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशहोल्ड है वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए तभी वो रिएक्शन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये नहीं कहा क्या होनी चाहिए, यहाँ पूछा कितनी एनर्जी उन्हें चाहिए। तो अब फ़र्ज़ कीजिए एक रिएक्शन के लिए 200 किलो जूल्स की एनर्जी चाहिए, तो वो थ्रेशहोल्ड हो गई। कोई मॉलिक्यूल कंगला नहीं होता, किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती। ज़ीरो एनर्जी का मतलब है कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करे। तो रूम टेम्परेचर पर हर मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। तो अब फ़र्ज़ कीजिए एक रिएक्शन की थ्रेशहोल्ड एनर्जी 200 है और मॉलिक्यूल्स के पास जो इंटरनल एनर्जी है वो 150 है। तो 150 उनके पास ऑलरेडी है। अब अगर वो चाहते हैं कि उनका रिएक्शन हो जाए तो उन्हें 150 से 200 तक पहुंचना है। तो एक्चुअली क्या हिस्सा उन्हें चाहिए? 50 का। द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशहोल्ड एंड इंटरनल एनर्जी, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इससे हमें और भी बहुत सारे सवाल मिलते हैं। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑप्शन ए में मौजूद है। Aldehyde and ketones, they are two organic compound with carbonyl group as a functional group. अब इनके बारे में 4 बातें लिखी हुई हैं कि they can oxidize to carboxylic acid, they contain carbonyl groups and they undergo nucleophilic addition reactions. तो the matter of fact है ये तीनों बातें सही हैं। हम एल्डिहाइड्स को वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर भी और स्ट्रॉन्ग लेकर भी ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। कीटोन भी ऑक्सीडाइज होता है, बट ज़रा शर्त यह है कि इट्स कैन ओनली बी ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। दोनों के पास कार्बोनाइल ग्रुप है, दैट थिंग इज़ ऑल्सो करेक्ट। और जब हम इनके रिएक्शंस पढ़ते हैं तो सबसे मशहूर रिएक्शन ये है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है उसमें एडिशन रिएक्शन होता है, और उसमें चूँकि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो जो चीज़ कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाले पर हमला करती है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इससे बस ये रिएक्शंस कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो चूँकि ये तीनों कैरेक्टर एल्डिहाइड कीटोन्स में मौजूद हैं तो राइट आंसर इज डी, विच इज़ ऑल ऑफ दीज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज are 2 carbohydrates, in fact monosaccharides, formula C6H12O6। वो असल में क्या है? तो पहली बात, अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं या इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस है। हेक्सोस मीन्स इसमें 6 कार्बन है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। फ्रक्टोज कीटोहेक्सोस है, यानी उसमें भी 6 कार्बन है और उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो चूंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है मगर दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन, सो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ऑप्शन बी सही हो गया। फिर उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें चिरल सेंटर हो या स्टीरियो सेंटर हो तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। और चिरल या ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर का मतलब है ऐसा कार्बन जिसने 4 अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से बॉन्डिंग कर रखी हो, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स में एक से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ग्लूकोज प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पे मोड़ता है, इसलिए ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और फ्रक्टोज जो है वो लेफ़्ट साइड पे मोड़ता है, इसलिए ये लेवर रोटेटरी है। इन शॉर्ट ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर हैं। तो ऑप्शन ए भी सही हो गया। और फिर है नंबर सी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ऑब्वियस सी बात है कि जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा
वो स्टीरियो आइसोमर, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर भी होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल में है फंक्शनल ग्रुप। आखिरी ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मतलब है ये वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो उन कंपाउंड्स में होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। ये दोनों कंपाउंड ABC तीनों शो करते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो अब सिर्फ इसमें एक छोटी सी हम चीज़ बढ़ा लें, इन क्वेश्चन द क्वेश्चन मस्ट बी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर नॉट। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज नहीं करते? तो वो ऑप्शन डी बन जाएगा। दैट इज़ वो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी हैं, लेकिन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, जिसमें वो सिस और ट्रांस आता है, ये वो नहीं है। फिर इसके बाद है EDTA इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यू रिकॉल द टॉपिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, वेल वी हैव लिगेंड्स ओवर देयर and there are classification of ligands on the basis of their donor sites। तो इसमें एक मल्टीडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड की बात आती है, और वो EDTA is an abbreviation of इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, और ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, यानी एक EDTA एक मेटल के साथ 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसको मल्टीडेंटेड कहते हैं या पॉलीडेंटेड कहते हैं। अब ऑप्शन में तो है बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड और एम्बीडेंटेड, ये तो है नहीं। जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं, जब वो मेटल के साथ मिलते हैं तो कुछ ख़ासतौर पर ऑर्गेनिक वाले वो उस मेटल के साथ मिलकर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ऐसा कुछ हिसाब बन जाता है कि वो 6 जगहों से मेटल को ग्रिप किए हुए होते हैं। केमिस्ट्री वाले इसको कंपेयर करते हैं केकड़े से, कि जिस तरह केकड़े के बहुत हाथ पैर होते हैं और वो किसी चीज़ को ग्रिप करता है, तो जो इमेज शक्ल बनती है बिल्कुल पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की भी वैसी ही बनती है जब दे बॉन्डेड विद द मेटल। ग्रीक लैंग्वेज में हम क्रैप्स क्लॉ यानी केकड़े के पंजे को चीलेट कहते हैं। तो इस निस्बत से ऐसे तमाम पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो मेटल के साथ रिएक्शन करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको चीलेटिंग एजेंट कहा जाता है। सो EDTA इज चीलेटिंग एजेंट एंड दिस इज योर आंसर डी। PVC is abbreviation of polyvinyl chloride, is a plastic synthetic plastic formed due to the addition polymerization of vinyl chloride या क्लोरोईथीन। तो अब यहाँ पर यही पूछा है कि ये किस टाइप की पॉलीमराइजेशन से बनता है या किस टाइप के रिएक्शन से बनता है, तो ये बनता है एडिशन पॉलीमराइजेशन से। सो ऑप्शन ए शुड बी दी आंसर। फिर हमने कहा विच वन इज़ पोलर मॉलिक्यूल। सो पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स हों, तो वो अमूमन ऐसे एटम्स के दरमियान बनता है जिनमें शेयरिंग इज़ अनइक्वल, या दो ऐसे एटम मिले हुए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क है। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि ऑलमोस्ट बराबर है, बड़ा मामूली सा फ़र्क है, तो इस मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर ट्रीट करते हैं। H2O CO2 डेफिनेटली कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बड़ा मार्क्ड डिफरेंस है, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि CO2 में स्ट्रक्चर बनता है लीनियर, और कार्बन सेंटर में होता है और ऑक्सीजन इसके दो अपोजिट एंड में होता है, और दोनों के दोनों अपनी पोलैरिटी के इफेक्ट को या डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। तो नतीजा ये होता है कि CO2 के इंडिविजुअल बॉन्ड तो पोलर हैं, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो फिर नाइट्रोजन के दोनों आइटम नाइट्रोजन के हैं, उसके तो पोलर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर बच गया सिर्फ वाटर। तो इन 4 एग्जाम्पल्स में जो मॉलिक्यूल पोलर है वो है वाटर H2O विद ऑप्शन सी। किप्स एपरेटस इज़ यूज फॉर मेकिंग, दिस इज़ फॉर मेकिंग H2S। हमारे सिलेबस में एज सच अब ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली NED में पूछा जाता रहा है। तो ये पूछने की शायद वजह ये है कि हमारे प्रैक्टिकल में ये इस्तेमाल होता है। जो सॉल्ट एनालिसिस का प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर में करते हैं उसमें H2S गैस इस्तेमाल होती है, और हम इसके सेपरेटर्स को यूज़ करते हैं फॉर द लेबॉरेटरी प्रिपरेशन ऑफ H2S। सो द ऑप्शन इज़ बी। रिएक्शन, डमी रिएक्शन लिखा है कि A + B इज़ फॉर्मिंग AB। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ A and B इंक्रीजेज 3-fold, अगर हम A और B की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ाएं, व्हाट गोना हैपन्स टू द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो इस रिएक्शन का ओवरऑल रेट लिखा जाता है उसकी रेट एक्सप्रेशन R रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B
मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो अगर मैं ए की कंसनट्रेशन को 3 टाइम्स करूँ तो उससे रेट 3 टाइम्स हो जाएगा, बी की कंसनट्रेशन को 3 टाइम्स करूँ तो उससे भी रेट 3 टाइम्स हो जाएगा, दोनों की कंसनट्रेशन को 3 टाइम्स कर दूँ तो सिंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज मल्टीप्लाइड तो 3 3s are 9, so it means rate of reaction will increase is 9 times, so your option is B. एस्टर इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन से एस्टर बनता है? एस्टर के बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्टेरिफिकेशन, बहुत मशहूर रिएक्शन है ऑर्गेनिक का। वेन एवर एन अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड दे फॉर्म एस्टर एंड वाटर, सो इट मीन्स इसमें जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर है। C12H22O11 इज द फॉर्मूला ऑफ, अगर हम देखें रिकॉल है, मेमोरी रिकॉल है, दिस इज अ डाइसैकेराइड और इसका नाम है सक्रोज। अच्छा, फॉर्मूला देखकर तो आपको ये बता दें कि इस फॉर्मूले के और भी कार्बोहाइड्रेट हैं जो डाइसैकेराइड हैं, सबके फॉर्मूले ऐसे होते हैं, लैक्टोज, माल्टोज, सक्रोज, सबका यही फॉर्मूला है, सबके स्ट्रक्चर्स में फ़र्क है लेकिन फॉर्मूला यही है। लेकिन चूँकि ऑप्शंस में हमें सक्रोज के अलावा फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज दोनों, सिर्फ ग्लूकोज इस तरह दिया हुआ है तो ये तो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, इसलिए 35 में हमारा जवाब बनता है ए। सक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। ऑल नोबल गैसेस फुलफिल द ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट, तमाम नोबल गैसेस के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सिवाय हीलियम के, चूँकि हीलियम फर्स्ट नोबल गैस है, उसके पास टोटल होते ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो उसके फर्स्ट ऑर्बिट को फिल कर देते हैं, इसलिए उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके लिए हम कहते हैं वो डुप्लीट रूल को फॉलो करता है। सो इन दिस ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर, दैट हीलियम इज़ द ओनली गैस जिसका ऑक्टेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिल्क शुगर यानी जो शुगर दूध में मिलता है वो कौन सा है? तो वो शुगर है लैक्टोज, तो लैक्टोज मिल्क शुगर कहलाता है, दैट्स ऑप्शन बी। पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, तो पाई बॉन्ड्स हमेशा बनते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग से, तो ये बन गया ऑप्शन बी। ये डिस्कशन ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले आया था तो हम कर चुके। अमाइनो एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अमाइनो और कार्बोक्सिलिक दोनों फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप एसिडिक है और अमाइनो ग्रुप बेसिक है। अब अगर एक कंपाउंड में एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप हों तो इस मीन्स वो कंपाउंड एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाएगा, और जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं उनको एम्फोटेरिक कहते हैं, एंड दैट इज ऑप्शन डी। द केमिकल नेम ऑफ यूरिया है NH2 C डबल बॉन्ड ONH2। सो टेक्निकली ये अमाइड है मगर इसमें 2 जगह पर NH2 लगा हुआ है, तो इसको केमिकली हम या तो कॉमन नेम यूरिया है वरना केमिकली इसको कहते हैं कार्बामाइड। तो अभी जो कार्बामाइड है दिस इज योर ऑप्शन डी। फर्टिलाइजर्स विच कंटेन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, देखिए फर्टिलाइजर्स आर दोज सब्सटेंस विच एक्चुअली हेल्प्स अस टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। अपनी फसलों को अच्छी तरह उगाने के लिए जिस मट्टी में फसल उगाई जाती है उस मट्टी में कुछ ऐसे मिनरल्स होने चाहिए जो ग्रोथ ऑफ प्लांट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्टिलाइज़र वो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। हम टेक्निकली कहते हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनको एसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है फॉर फर्टिलाइज़र फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो फर्टिलाइज़र्स में आमतौर पर ये 3 एलिमेंट अकेले या इकट्ठे होते हैं। तो अगर एक फर्टिलाइज़र में सिर्फ नाइट्रोजन हो या सिर्फ पोटेशियम हो या सिर्फ फॉस्फोरस हो तो वो स्ट्रेट फर्टिलाइज़र्स कहलाते हैं या डायरेक्ट फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। अगर वो एक ही फर्टिलाइज़र में एक से ज़्यादा एलिमेंट हो तो वो कंपाउंड फर्टिलाइज़र्स कहलाते हैं। तो अभी हमने आपसे कहा है जो नाम हमने नीचे दिए हुए हैं उनमें से कौन कंपाउंड फर्टिलाइज़र है फॉर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जिसमें दोनों हो। तो यूरिया सिर्फ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, अमोनियम सल्फेट में सिर्फ नाइट्रोजन है और इसी तरह पोटाश में सिर्फ पोटेशियम है। तो DAP इज़ एब्रीविएशन ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें नाइट्रोजन भी है और फॉस्फोरस भी है, इसलिए दैट इज़ द राइट ऑप्शन। जनरल फार्मूला ऑफ अमाइड वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ NH2 ग्रुप लगा होता है और दूसरी तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं अमाइड। जो इस वक्त जो बी ऑप्शन है वो यही है, तो दिस इज़ द आंसर। मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ पेट्रोल इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 5 to 10 कार्बन्स, लेकिन जो इसका मेजर कंपोनेंट मेन कंपोनेंट है जो हम पेट्रोल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो 8 कार्बन्स वाला ऑक्टेन है। सो ऑक्टेन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल, दिस इज़ योर ऑप्शन ए। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर विच गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, हमें याद रखना है कि there is no single gas which is perfectly ideal. Normally the gases at
लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर बिहेव्स मोर आइडियली देन और नॉन आइडियल, लेकिन परफेक्शन नहीं है। तो अब याद हो एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा था और हमारी थ्योरी में कुछ ग्राफ्स बने हुए थे जिसमें ये शो किया जा रहा था कि अंडर डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड प्रेशर हाउ द गैसेस बिहेव्स विद रिस्पेक्ट टू देयर आइडियल बिहेवियर। तो वो गैस जो सबसे ज़्यादा क्लोज है टूवर्ड्स द आइडियल बिहेवियर एंड जिसका बिहेवियर आइडियल बिहेवियर से बहुत ज़्यादा मैच करता है, इफ़ नॉट 100% तो ज़्यादा मैच करता है, वेरी क्लोज टू 100%, वो गैस होती है जिसका मोलर मास कम हो। सो अगर हम इन चारों में देखें तो CO2 का मोलर मास 44 है, O2 का 32 है, नाइट्रोजन का 46 है और हीलियम का सिर्फ 4 है। सो बिकॉज ऑफ दिस हीलियम इज़ वेरी क्लोज टू एन आइडियल बिहेवियर। अगर कोई इसका कॉम्पिटिटिव बनता है तो वो हाइड्रोजन बनता है, इसका मॉलिक्यूलर मास 2 है। तो इस हिसाब से हीलियम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस में बेस्ट आंसर है और ऑप्शन हो गया बी। विच इज़ अ नोबल गैस विद द वीकेस्ट वॉन्डर वॉल फोर्सेस। तो कौन सी नोबल गैस ऐसी है जिसकी वॉन्डर वॉल फोर्स सबसे कम है? वॉन्डर वॉल फोर्स डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास पर। सिंस दे आर ऑल एटम्स तो इनके एटॉमिक मास पर करेगी, तो जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा उसकी वॉन्डर वॉल फोर्स सबसे कम होगी और वो इस ऑप्शन में है अगेन हीलियम। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बेसिक बफर सोल्यूशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय मिक्सिंग। बफर बनाते हैं हम 2 तरह के, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। और इसमें लॉजिक ये होती है कि अगर हम एसिडिक बफर बनाएंगे तो हम लेंगे वीक एसिड और उस वीक एसिड का ऐसा सॉल्ट जो उसने स्ट्रॉन्ग बेस से बनाया हो। तो इसी तरह बेसिक बफर के लिए हम लेंगे वीक बेस और उसका ऐसा सॉल्ट जो उसने स्ट्रॉन्ग एसिड से बनाया हुआ। तो अगर ऐसा देखें तो फर्स्ट ऑप्शन तो सेंसलेस है, उसमें तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl इस्तेमाल कर दिया अलॉन्ग विद NaCl। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ हो गया तो वो तो हमें करना ही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस और उसके साथ मिला है अमोनियम क्लोराइड विच इज़ द सॉल्ट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद HCl दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सो बी इज़ द राइट आंसर। अब सी ऑप्शन में हमने वीक एसिड ज़रूर लिया है लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है, सो ये तो बफर वैसे ही नहीं बन रहा है। और थर्ड में भी ऐसा ही किया है कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड लेकर उसके साथ जो सॉल्ट लिया है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लिया है, तो ये तो बफर की बेसिक डेफिनेशन पे नहीं आते, ना एसिडिक ना बेसिक। तो सही जवाब यहाँ पर है बी। द मैकेनिज्म थ्रू विच बेंजीन रिएक्ट्स। बेंजीन के रिएक्शन सबसे ज़्यादा मशहूर हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह लेता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ HCN विद कार्बोनाइल कंपाउंड गिव्स डैश रिएक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड में जब HCN ऐड होता है तो ये रिएक्शन पहली बात एडिशन है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है और जो बेसिकली अटैक करता है कार्बन के ऊपर, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, वो साइनाइड है जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। इसलिए इन रिएक्शंस की टाइप को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज ऑप्शन सी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट लोकेशन समझाने के लिए हम 4 क्वांटम नंबर, आर्बिट्रेरी नंबर्स यूज़ करते हैं, जिनमें से एक ऑर्बिट को जाहिर करता है, एक सब ऑर्बिट को, एक ऑर्बिटल को, एक स्पिन को। उन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। उसमें से एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एवरेट डिनोटेड बाय स्मॉल n। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का काम है एटम में ऑर्बिट को डिस्क्राइब करना। सो दे आर रिप्रेजेंटिंग KLMNOP ऑर्बिट्स या शेल। तो इस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन के शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। द ऑप्शन इज ए। इन विच कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +3। अब ये जो नीचे सारे कंपाउंड दिए हुए हैं अगर हम इसमें हिसाब लगाएं तो फर्स्ट FeSO4 में SO4 का चार्ज -2 होता है तो Fe का चार्ज +2 हो गया। ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन बी में Fe2SO4 थ्राइस है तो SO4 का चार्ज -2 है और वो 3 मरतबा है, तो इस तरह टोटल माइनस चार्ज -6 हो गया। और Fe2 है तो उसके ऊपर चार्ज होगा +6, तो 2 Fe पर अगर +6 होगा तो एक Fe पर +3 होगा। इसका मतलब है ऑप्शन बी में जो आयरन है उसका चार्ज है +3। और फिर इसी तरह नीचे देखें सी में तो ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, 3 ऑक्सीजन है तो टोटल चार्ज हो गया -6, तो 2 Fe पर +6 आया तो एक Fe पर +3 बनेगा। तो बी और सी दोनों में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बन रहा है, इसलिए हमारा जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, जिसके अंदर बी और सी दोनों शामिल हैं। फिर केमिकल रिएक्शंस अगर रिवर्सिबल हो तो उनमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है और उस इक्विलिब्रियम को प्रेजेंट करने के लिए हम एक कांस्टेंट का सहारा लेते हैं, कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
For reactions of solid liquid gases, we have a comprehensive equilibrium constant which is called Kc. This is equilibrium constant for concentration. But for only gaseous reactions, we have another constant which is called Kp, the equilibrium constant for partial pressure. इसका मतलब है वो रिएक्शन जो गैसेस के दरमियान होते हैं उनके दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, एक ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन, एक ड्यू टू पार्शियल प्रेशर. हमने कहा कि ये कैसे पता चले कि किस रिएक्शन के Kp और Kc में क्या रिलेशन है. तो हमने कहा रफली हम ये बता सकते हैं हर रिएक्शन को देखकर कि उसका Kp बड़ा है या Kc बड़ा है या दोनों बराबर हैं. तो इसलिए सवाल हुआ अगर किसी रिएक्शन के Kp की वैल्यू बड़ी और Kc की वैल्यू छोटी हो तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है. तो याद रहे Kp उन रिएक्शंस का बड़ा होता है जिनके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हों. जैसे अगर मैं इक्वेशन लिखूं आपके सामने फॉर दी डीकम्पोजिशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो इसमें रिएक्टेंट में SO3 के 2 मोल्स हैं, मगर प्रोडक्ट में SO2 के 2 और ऑक्सीजन का 1 मोल है, टोटल हो गए 3. इसका मतलब है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम है. ऐसे रिएक्शंस में Kp बड़ा होता है और Kc छोटा होता है. फिर हमें याद दिलाना है कि गैसियस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम भी कहा जाता है. इसका मतलब है आप यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे रिएक्शंस का Kp बड़ा होगा जहाँ रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा हो, प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा हो, रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम हो. अगर इस सेंस में देखेंगे तो आपको ऑप्शंस में पहला ही ऑप्शन नज़र आएगा, रिएक्शन अकर्स विद इंक्रीज इन वॉल्यूम इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. No two electrons can have the same quantum numbers is this in an atom is the statement of Pauli's exclusion principle. उसने हमें बताया कि एक ही एटम में मौजूद दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो. इट मीन्स द आंसर इज ए. Which halogen acid is strongest? HF, HCl, HBr, HI में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? एसिड का काम है पानी में जाके आयनाइज होना और H पॉजिटिव प्रोवाइड करना. जो पानी में जाके जितने आसानी से और ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो इन चारों में वो ये काम ज़्यादा आसानी से करेगा जिसका हाइड्रोजन और हेलोजन बॉन्ड जो है वो वीक होगा, जो आसानी से टूट जाएगा, तो इसलिए वो पानी में ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा. तो अब आप खुद अकल से फैसला कीजिए. फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, उसने जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा और वो आसानी से नहीं टूटेगा, जबकि आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसने जो बॉन्ड बनाया होगा वो रिलेटिवली वीक होगा और वो आसानी से टूट जाएगा. तो फिर जिसका बॉन्ड आसानी से टूट कर H+ आयन बनाएगा वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. तो फिर इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड है HI, ऑप्शन है डी. If absolute temperature of the gas is halved, pressure is also reduced to half, then volume is. आपको दो लॉज याद रखने हैं. बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आप प्रेशर को हाफ करें तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा. चार्ल्स लॉ कहता है टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर आप टेम्परेचर को डबल करें वॉल्यूम डबल होगा और टेम्परेचर को हाफ करें तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा. तो टेम्परेचर का डबल करना वॉल्यूम को हाफ कर रहा है और प्रेशर का रिड्यूस होना वॉल्यूम को डबल कर रहा है. तो अब आप खुद सोचिए, एक फैक्ट अगर फर्स्ट कर लें गैस का वॉल्यूम 10 था तो टेम्परेचर को आधा करने की वजह से वो 10 से 5 हो गया, और लेकिन आपने प्रेशर आधा किया तो उससे वो डबल हो गया, तो 5 से दोबारा 10 हो गया. इसका मतलब है ये दोनों जो काम आप कर रहे हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और नेट वॉल्यूम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन सी. ग्राहम्स लॉ गैसेस में डिफ्यूजन को डील करता है. इनफैक्ट डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों को करता है. सो दिस इज़ द लॉ विच डील्स विद बोथ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन. चूँकि यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ डिफ्यूजन दिया हुआ है इसलिए हम उसका जवाब लिखेंगे बी. The energy required to remove the most loosely bound electron is the definition of ionization potential or ionization energy. So this is option B. Which of the following contains lone pair? तो अब अगर हम इन सारे मॉलिक्यूल्स को देखें तो हमें फैसला करना है कि किसके अंदर लोन पेयर मौजूद है. वाटर का फॉर्मूला H2O है, उसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर्स होते हैं. अमोनिया का सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है जिसमें 1 लोन पेयर होता है और मीथेन का सेंट्रल एटम कार्बन है जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होता. इस हिसाब से सही जवाब है वाटर, जिसमें लेकिन चूंकि हमसे वाई बस लोन पेयर होना चाहिए, तो वाटर में ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं और अमोनिया में 1 होता है. तो ये दोनों वो कंपाउंड हुए जिनमें लोन पेयर होता है और इसलिए सही जवाब हुआ डी, वेयर वी हैव रिटन ए एंड बी बोथ. कोलेस्ट्रॉल इज मेनली कॉल्ड एज. कोलेस्ट्रॉल एग्जाम्पल है
लिपिड्स की। लिपिड्स 3 तरह के होते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और स्टीरॉइड्स। तो अब उसमें जो स्टीरॉइड्स हैं कोलेस्ट्रॉल, उनकी एग्जाम्पल है। सो दिस इज ऑप्शन सी। The sum of partial pressure of gases present in a system is always equals to total pressure is the statement of Dalton's law of partial pressure. So this is option B. Which amino, when amino acid is dissolved in water it becomes, amino acid जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं और वो भी अपोजिट नेचर के, एक बेसिक नेचर रखता है अमाइनो और एक एसिडिक नेचर रखता है COOH। जब हम इसे पानी में डालते हैं तो दोनों अपनी अपनी नेचर के हिसाब से काम करते हैं। COOH चूँकि एसिड है वो पानी में जाकर प्रोटॉन डोनेट करता है, यानी H पॉजिटिव डोनेट करता है, और अमाइनो ग्रुप चूँकि बेसिक ग्रुप है वो उस H पॉजिटिव से रिएक्शन कर लेता है तो वो NH2 से बना देता है NH3। इस तरह एक ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जिसके एक कोने पे है ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है और दूसरे कोने पे है नाइट्रोजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ओवरऑल इस कंपाउंड को क्या कहूँ, कैटाइन या एनाइन? तो हमने कहा ये डायपोलर ज़रूर है लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल है, तो ऐसे आयन को हम कहते हैं ज़्विटर आयन। तो अमाइनो एसिड जब पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो ये बनाते हैं ज़्विटर आयन, ऑप्शन सी। RSH, OH कहते हैं अल्कोहल को और SH कहते हैं थायो अल्कोहल को, तो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ थायो अल्कोहल का, विच इज़ ऑप्शन बी। द हाइस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी, अब इन 4 में से जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा होगी जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी देर पहले हमने कहा था बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन bond with hydrogen will be highly polar, and since the electronegativity of fluorine is the highest among all the elements, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर होगा और इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यही पूछा है कि किसको तोड़ना सबसे मुश्किल है, किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो वो HF है, जो कि ऑप्शन बनता है बी। द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन प्रोड्यूसेस, हाइड्रोजनेशन का मतलब है अल्कीन में वाटर ऐड कर दें, तो अगर हम अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड कर दें, अगर हम अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो अल्केन बन जाते हैं। सो राइट आंसर इज सी। वॉन डेर वाल्स फोर्सेस आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ क्रिस्टल्स? तो क्रिस्टल्स आयनिक होते हैं, मेड अप ऑफ आइंस। क्रिस्टल मेटालिक होते हैं, मेड अप ऑफ मेटल्स, एटम। क्रिस्टल्स कोवलेंट होते हैं, मेड अप ऑफ एटम्स बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड। और क्रिस्टल्स मॉलिक्यूलर होते हैं, composed of molecules which are further attract with each other with the help of intermolecular forces, और intermolecular forces में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस भी आती हैं। इसका मतलब है वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, दैट इज ऑप्शन बी। फिर है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉट रीजन। ग्रिग्नॉट रीजन की बहुत सारे रिएक्शन हमारे सिलेबस में। हाइड्रोलिसिस का मतलब है ग्रिग्नॉट रीजन को पानी से रिएक्शन करें, उसके नतीजे में बनता है अल्केन, विच इज ऑप्शन ए। Equal number of molecules of different gases at same temperature and pressure occupies same volume is the statement of Avogadro's law। एवोगैड्रो ने ये लॉ हमें दिया था कि अगर आपके पास बहुत सारी गैसेस हों और आप उनके नंबर ऑफ मोल सेम रखें और उनका टेम्परेचर प्रेशर सेम रखें तो उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। सो दिस इज एवोगैड्रो's law, ऑप्शन बी। Nylon 6,6 is obtained by the reaction of methylene diamine with hexamethylene diamine with, तो nylon 6,6 is an example of copolymer, condensation polymerization, और ये 2 मोनोमर्स के मिलने से बनता है। एक इसमें है hexamethylene diamine और दूसरा है हेक्सेन डायोइक एसिड, जिसको आप एडिपिक एसिड कहते हैं। दोनों में 6,6 कार्बन आते हैं, इसलिए इसका नाम बनता है नाइलॉन 6,6। तो इधर आंसर है एडिपिक एसिड, ऑप्शन ए। द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स, बेंजीन में क्या है? हम बेंजीन का स्ट्रक्चर अमूमन बनाते हैं तो उसमें कोई डबल बॉन्ड दिखाते ही नहीं है, ऐसे सर्किल बीच में बना देते हैं। हाँ, कुछ लोग बेंजीन को 3 डबल बॉन्ड के साथ बनाते हैं, दे माइट कंफ्यूज इन दी ऑप्शन ए, लेकिन याद रहे बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड नहीं है, ये कहना गलत है, क्योंकि बेंजीन में जो 3 डबल बॉन्ड बज़ाहिर हमें दिखते हैं, दे आर नॉट बिहेविंग लाइक द ऑर्डिनरी डबल बॉन्ड्स, बट दे आर डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर रिंग एंड दे आर शोइंग रेजोनेंस फिनोमेना, जिसकी आसान मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड इतनी तेज़ी से अपनी जगह बदल रहे हैं कि ये ऑर्डिनरी बॉन्ड नहीं रहते, ये स्पेशल डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है। तो इधर यही जवाब है, दैट इज़ ऑप्शन डी। इथाइल अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉइक एसिड। इथाइल अल्कोहल को हम इथेनॉइक एसिड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इज ऑप्शन सी। इस अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके
पहले एल्डिहाइड बनाते हैं और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा और कंप्लीट ऑक्सीडेशन से इथेनॉइक। अब यहाँ एल्डिहाइड का ऑप्शन ही नहीं है, तो जवाब जो बनता है कि हमें डायरेक्ट इथेनॉइक एसिड बनाया है, तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। 16 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल कंटेन्स, याद रहे O2 का मॉलिक्यूलर मास है 32। तो अब अगर हमें ये पता लगाना हो कि गिवन मास में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो आप सबसे पहले उस मॉलिक्यूल के उस मास को मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स बनाते हैं, जो निकलेंगे 0.5। और अब इस मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, इसे एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एंड योर आंसर शुड बी 3.01 × 10⁻23, विच इज़ द ऑप्शन ए। सो दिस इज़ द राइट आंसर। कैप्रोइक एसिड किसे कहते हैं? ये कॉमन नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड का। 6 कार्बन वाले कार्बन को कैप्रोइक कहते हैं, यानी ये हेक्सानोइक एसिड का दूसरा नाम है। 5 कार्बन वाले को वैलेरिक कहते हैं, 4 कार्बन वाले को ब्यूटारिक कहते हैं, 3 कार्बन वाले को प्रोपियोनिक कहते हैं, 2 कार्बन वाले को एसिडिक कहते हैं और 1 कार्बन वाले को फॉर्मिक कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है उसमें अगर आप गिने तो टोटल 6 कार्बन बनते हैं, तो दिस शुड बी दी कैप्रोइक एसिड। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन? मीथेन की क्लोरिनेशन इज़ दी ओनली रिएक्शन ऑफ अल्केन जो आपके सिलेबस में है, और ये रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में होता है, इसलिए ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑफ अल्केन सब्सटीट्यूट होते हैं बाय क्लोरीन, इसलिए ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में सनलाइट की वजह से क्लोरीन अपने रेडिकल्स बनाता है, फ्री रेडिकल्स बनाता है, इसलिए दिस इज़ अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो खुद ब खुद जो चीज़ गलत हुई वो हुई ऑप्शन बी जो है, इट इज़ एन एडिशन रिएक्शन। तो ये कहीं से भी एडिशन रिएक्शन नहीं है, ना ही कोई सैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन दिखा सकता है। सो दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट दी हाइड्रोजन क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, तो हमने इसका नाम ऑप्शन बी रख दिया। देन वी हैव एन इक्वेशन C+2S फॉर्म CH2 और उसकी डेल्टा एच एंड एंथैल्पी चेंज की वैल्यू 117 किलो जूल पर मोल दी गई है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द साइन इज पॉजिटिव। तो अगर किसी भी रिएक्शन के डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इस हिसाब से ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन बी। If 5 ml of 1 molar NaOH in 5 ml of 1 molar NaOH the amount of NaOH present is, तो जब हम आपको किसी सब्सटेंस की मोलैरिटी दे दें और उसका वॉल्यूम दे दें, तो फिर आप उसमें मौजूद NaOH का अमाउंट कैसे निकालते हैं? तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहली बात, आपके पास जो फॉर्मूला है मोलैरिटी का, वो फॉर्मूला है ये कि मोलैरिटी इज़ मास ऑफ सॉल्यूट divided by molar mass of solute multiply by, this is mass of solute divided by molar mass of solute, और डिनोमिनेटर में ही है मल्टीप्लाई बाय डेसीमीटर क्यूब या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है हमें निकालना है मास, क्योंकि हमें मोलैरिटी गिवन है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करूं तो मास बन जाएगा मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और जो आपने अभी कहा है कि वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। तो अगर मैं ऊपर वाली चीज़ें देखूं तो मोलैरिटी मेरे पास गिवन है 1, मोलर मास NaOH का निकलेगा 40, और जो वॉल्यूम दिया है 5 ml, अगर हम उसे 1000 से डिवाइड करें तो 0.005, दैट इज़ दी वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो अब अगर मैं इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनने जा रहा है 0.16। अब ये कैलकुलेट कर लें अगर हम फ़ौरन, तो हमारी मोलैरिटी है 1 और हमारा वॉल्यूम है 5 ml। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जवाब क्या आना चाहिए? Here I have, so this is about 40 multiplied by 0.005 and this should be 0.2, that is option A. फिर इसके बाद है 20 ग्राम मोनोएटॉमिक गैस ऑक्यूपाइज 44.8 डेसीमीटर क्यूब एट STP, व्हाट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ द गैस? तो अगर एक गैस के 20 ग्राम का वॉल्यूम 44.8 है तो 44.8 डेसीमीटर क्यूब जो है वो
अगर हम इसके मोल्स निकालें तो इसका तरीका ये होगा कि 44.8 को हम डिवाइड करेंगे 22.4 मोलर वॉल्यूम से, तो ये बन जाएगा 2 मोल्स। तो इसका मतलब है मेरे पास 2 मोल्स का मास है 20 ग्राम। तो अगर 2 मोल्स का मास 20 ग्राम है तो 1 मोल का मास होगा 10 ग्राम, और मास ऑफ 1 मोल इज़ योर एटॉमिक मास। तो इस हिसाब से इसका एटॉमिक मास होना चाहिए 10 ग्राम, विच इज़ ऑप्शन बी। फिर इसके बाद आइए 76, if 1 mole of ethyl alcohol requires 3 moles of oxygen, then how much oxygen is required for 56 grams of ethanol? तो it's a simple thing, 1 mole ethyl alcohol का फॉर्मूला है C2H5OH, इसका मोलर मास बनता है 46। तो अब आप ये कहिए कि अगर मेरे पास 46 ग्राम अल्कोहल है तो इसके लिए मुझे 3 मोल्स ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी। तो अगर मेरे पास 1 ग्राम होता तो 3/46, यूनिटी मेथड लगा रहा हूँ, तो 56 ग्राम ऑफ इथेनॉल के लिए मुझे कितने मोल्स ऑक्सीजन चाहिए। सो आई शुड सॉल्व दिस। कैलकुलेटर अलाउ है, आपको इसकी कोई टेंशन नहीं है कि हाउ आई कैलकुलेट दिस। यू शुड फर्स्ट डिवाइड 3 with 46 and then multiply it with 56. You will get 3.65 moles. हमें 3.65 मोल्स आंसर में कहीं नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने आंसर में 6 मोल दिया है, 192 ग्राम दिया है और 81.8 डेसिमल। तो लेट मी चेक कि क्या 3.65 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या बनता है। इसके लिए मुझे 3.65 को 22.4 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड आई विल सी दैट द वॉल्यूम इज़ एक्जैक्टली 81.8। इट मीन्स ऑप्शन ए सही जवाब है। अगर मोल्स में देखें तो मेरे मोल्स आ रहे हैं 3.65, ऑप्शन बी में लिखे हैं 6 मोल, ऑब्वियसली गलत है। और इसी तरह मैं अगर 3.65 को ऑक्सीजन के 32 से मल्टीप्लाई करके उसके ग्राम निकालने की कोशिश करूं तो वो भी 192 नहीं आएगा, इसलिए सही जवाब है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन? इसमें से कोई एक कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखी है और हमें देखनी है कौन सी। तो अगर हम नोटिस करें तो जो सी वाली कॉन्फ़िगरेशन है जो हुंड्स रूल से लिखी है, दैट वॉयलेट्स द हुंड्स रूल, बिकॉज जेड में इलेक्ट्रॉन खाली है और हमने पी एक्स में पेयर बना दिया है। सो सी इज़ दी कॉन्फ़िगरेशन जो कि इस वक्त हुंड्स रूल के हिसाब से गलत है। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन द इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की इंथैल्पी ज़्यादा और प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम होती है, इसलिए एनर्जी इवॉल्व होती है। तो रिएक्टेंट की इंथैल्पी प्रोडक्ट की इंथैल्पी से ज़्यादा होगी, दैट इज़ ऑप्शन ए। प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेल्यूट पार्टिकल्स, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सोल्यूशन में मौजूद सेल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं उनको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, और हम ऐसी 4 प्रॉपर्टीज़ से वाकिफ़ हैं। इट इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो हियर द आंसर इज़ बी फॉर द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 2 liters ऑफ 2 molar सोल्यूशन शुड बी। तो यहाँ हमें जो दिया गया है उसका फॉर्मूला बनेगा, अमाउंट का फॉर्मूला बनता है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब। तो अब मेरे पास मोलैरिटी है 2, मेरा मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का निकलेगा 98, और इसका वॉल्यूम है 2 लीटर, तो 2 ही लिखेंगे, और जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 392, विच इज़ ऑप्शन बी। सो दैट इज़ माई आंसर। विच रूल इज़ वायलेटेड इन 1:2, 2p5, 3:2, 3p6, 4:3। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसमें पूछे कौन सा रूल वायलेट हुआ है, इसका मतलब इसमें गलतियाँ हैं। पहली गलती 1:2 के बाद 2:2 आता है, आप 2:2 स्किप कर गए हैं। तो ये जो हमें ऑर्डर बताता है कि किस सब शेल को पहले और किसको बाद में भरना है, ये अफबाउ प्रिंसिपल और n+l दोनों बताते हैं। तो ये दोनों रूल्स आपने ब्रेक कर दिए। फिर एक केयरफुली अगर हमने देखा तो नेक्स्ट 2p5 क्या होता है भाई, 2p6 होता है, तब आगे आएगा। तो इसका मतलब है आपने p की टोटल कैपेसिटी को गलत लिखा है, और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता था। तो भाई साहब इस कॉन्फ़िगरेशन में तो आपने सारे ही रूल्स तोड़ दिए हैं, इसलिए सही जवाब होगा डी, कि ऑल ऑफ दीज जो ऊपर लिखे हैं ये सारे के सारे रूल इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में वायलेट हुए हैं। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 240 जूल्स ऑफ वर्क इज डन बाय सिस्टम एंड इट एब्जॉर्ब्स 200 जूल ऑफ एनर्जी। हमें याद रखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक डेल्टा ई का फॉर्मूला है Q + W। जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो Q पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है देयर इज़ 200 जूल इज़ इन पॉजिटिव। जब वर्क सिस्टम करता है यानी सिस्टम एक्सपेंड होता है तो दिस वर्क इज़ नेगेटिव एंड इट इज़ कॉल्ड 240 जूल्स। दिस नोटेशन इज अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक, पुरानी बुक में उल्टी नोटेशन है, इसलिए मैंने कहा कि आप ये याद रखना है। बहरहाल दोनों से आंसर सेम ही आता है।
तो अब अगर मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करूँगा तो 200 प्लस माइनस 240 विच मीन्स -40 आपका जवाब आएगा, विच इज़ ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फेवरेबल फॉर E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स करते हैं और उनको फेवर देता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स तो खैर हर सॉल्वेंट में कर लेते हैं और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स तब करते हैं जब उन्हें नॉन पोलर सॉल्वेंट मिलता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट ऑलवेज फेवर दी E2 रिएक्शंस। द ऑप्शन इज बी। रिडक्शन की बहुत सारी डेफिनेशन, इट्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तीनों ही है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ अबव यानी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसमें किसी चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, O-2 से O-3 डिक्रीज हो रही है, B+2 BE+2 से BE0 डिक्रीज हो रही है। बट SO3-2 टू SO4-2 में तो ऐसा लग रहा है एक ही है, तो आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें इसमें, तो SO3-2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी +4 और SO4-2 में निकलेगी +6, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि लास्ट ऑप्शन में भी रिडक्शन है, तो C इज़ दी राइट आंसर। रिएक्शन फर्स्ट कीजिए जिसमें हमने x+y को रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए XY बनाया और फिर आपसे पूछा अगर इस रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर हम XY जो कि प्रोडक्ट है ऐड करें तो क्या होगा। अगर हम किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उससे रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू होता है और रिएक्टेंट फॉर्म होने लगते हैं। तो रिएक्टेंट फॉर्म होने का मतलब है X2 और Y2 फॉर्म होगा। तो ऑप्शन देखिए, पहला लिखा है कॉज Y2 टू डिक्रीज, रॉन्ग। ड्राइव द रिएक्शन टुवर्ड्स राइट, रॉन्ग। कॉज X2 टू इंक्रीज, ये है सही जवाब। जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो X2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सो दैट इज C इज योर आंसर। इफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया शोन बिलो इज एक्सोथर्मिक एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम। याद रहे, रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन को फेवर करेगा, क्योंकि टेम्परेचर का बढ़ना हमेशा उस साइड को फेवर करता है जो एंडोथर्मिक हो। तो अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडो है, टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड डायरेक्शन को फेवर मिलेगी। हमने लिखा है द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दी राइट, राइट का तो मतलब हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन, गलत। द H2 विल डिक्रीज, H2 बन रहा है मौजूद है रिएक्टेंट में, तो जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो H2 को इंक्रीज होना है, ये भी गलत है। इक्विलिब्रियम इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन और इक्वेशन स्टिशियोमेट्री नॉट टेम्परेचर, बिल्कुल गलत बात है। द N2 विल इंक्रीज इज द राइट आंसर, क्योंकि N2 भी रिएक्टेंट में मौजूद है, सो D इज द राइट आंसर। फिर एक सवाल है, इमेजिन ए 1 लीटर कंटेनर इनटू विच 2 मोल्स ऑफ सैंपल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस ABC आर इंट्रोड्यूस, A और B रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज 4.2, इन विच डायरेक्शन द डज रिएक्शन इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट। तो हमने कहा इसका तरीका होता है कि आप सबसे पहले रिएक्शन कोशेंट QC निकालते हैं और उसका फॉर्मूला है कि C का स्क्वायर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B सभी 2 हैं, तो ऊपर होगा 2 का स्क्वायर और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आंसर आया 1। तो अब QC या रिएक्शन कोशेंट जो है वो 1 आया है और Kc की वैल्यू जो है वो 4.2 है, तो इसका मतलब है QC छोटा है और Kc बड़ा है। तो जब Kc बड़ा होता है और QC छोटा, तो इक्विलिब्रियम आपसे पूछा इन विच डायरेक्शन इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट, तो अगर QC चाहता है मुझे इक्विलिब्रियम मिल जाए तो उसे अपनी वैल्यू 1 से बढ़ाकर 4.2 करनी होगी, तभी उसे इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो 1 से बढ़ाकर 4.2 करने का मतलब है उसे आगे जाना है, दैट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन, सो A इज़ द राइट आंसर। NaCl MgO forms cubical crystals, so they are आइसोमॉर्फ। ऐसे 2 सब्सटेंस जो एक ही स्ट्रक्चर का क्रिस्टल बनाए उन्हें आइसोमॉर्फ या हम शक्ल कहते हैं, तो ये A आंसर हुआ। ये एक हमने सेल डायमेंशन दिए जिसके मुताबिक तीनों एक्सिस बराबर हैं, तीनों लेंथ बराबर हैं और तीनों लेंथ आपस में अनइक्वल हैं और तीनों लेंथ 90 डिग्री के बराबर हैं। ये है सेल डायमेंशन ऑफ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, जिसमें तीनों लेंथ अनइक्वल और तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वन डायरेक्शन एंड बैड कंडक्टर इन अनदर डायरेक्शन। सो ऐसे सब्सटेंस को जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को डायरेक्शन के साथ चेंज करते हैं हम एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं, विच इज़ ऑप्शन बी। सॉल्ट विच इज़ फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो सॉल्ट बनेगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो जिस चीज़ का
रोल डोमिनेंट होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो बन जाएगा एसिटिक सॉल्ट। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एग्जांपल हमें नज़र आती है वो है NH4Cl, जो कि बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से। सो इट मीन्स ये है एग्जांपल ऑफ सच सॉल्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक ऑक्साइड? तो भाई जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जो यहाँ पर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सो ऑप्शन डी है, जबकि मेटालिक ऑक्साइड आमतौर पे बेसिक होते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी स्टेटमेंट अबाउट द कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन टेंडल इफेक्ट देते हैं, एब्सोल्युटली नॉट राइट। इट्स पार्टिकल मूवमेंट इज ब्राउनियन टाइप, एब्सोल्युटली राइट। इट्स पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर इज द रॉन्ग थिंग। कोलाइडल साइज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के दरमियान। 1 नैनोमीटर से कम का साइज तो सैल्यूट पार्टिकल्स का है, इसलिए ये सही जवाब है। और इट्स फिजिकल अपीयरेंस इज ट्रांसलूसेंट, दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलाइड। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज़ ड्यू टू डिप्लेशन, ओजोन लेयर में सुराख हुआ था कभी, और द रीज़न वॉज द यूज़ ऑफ सम स्पेशल केमिकल्स विच आर रिएक्टिंग विद द ओजोन लेयर एंड दैट वॉज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो ये थे डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के रिस्पॉन्सिबल। स्मॉक एक टर्म यूज़ होती है विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। ये बनती है SO2 एरोसॉल्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से। तो अब जो ऑप्शन दिए हैं उसमें पूछा है कौन इसमें शामिल नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कम से कम स्मोक बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड द रेंज ऑफ pH फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड दैट इज 6.5 to 8.5, सो दिस इज ऑप्शन बी। विच टेक्निक इज़ यूज टू डिटेक्ट फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? हमारे लास्ट चैप्टर में सेकेंड ईयर के बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप की इन्फॉर्मेशन हमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी देती है, दैट इज़ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, विच इज़ ऑप्शन डी। Which technique is used to detect the presence of double or triple bond or even the conjugate system like benzene? It's UV visible spectroscopy, which is option B. And then the solvent used in NMR spectroscopy is D2O heavy water. एक और होता है DMSO dimethyl sulfoxide, options में नहीं है, इसलिए heavy water D2O should be the right answer, that's option B. So that completes the 100 questions for the chemistry, which we expect they will be इम्पॉर्टेंट, और इन द सेंस कि अगर हम इन सब को याद नहीं कर लें, बल्कि अगर इन सब के टॉपिक्स पर आपकी ग्रिप है और आपको ये क्वेश्चन आसान लगते हैं, तो फिर इससे रेलिवेंट भी जो क्वेश्चन होंगे वो भी आप आसानी से कर लेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।